اعظم گڑھ میں اور ہمارے علاقے میں اور ہماری کمیونٹی کے اندر جو لوگ غلط کر رہے ہیں، چاہے شادیوں میں فضول خرچی ہو، چاہے مشاعرے اور ڈھابوں کا معاملہ ہو، چاہے کرکٹ ٹورنامنٹ کا معاملہ ہو، ان کو روکنا، جا کے منع کرنا، یہ بحیثیت قوم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری اس لحاظ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ نائبین رسول ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سچے پیروکار ہیں، اور اگر ہمارے علماء نے، داڑھی ٹوپی والوں نے، نائبین رسول نے جا کے عوام اس طرح کے لوگوں کو منع نہیں کیا، ان کا ہاتھ نہیں پکڑا اور ان کو روکا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کے گھیرے میں تمام لوگ آ جائیں گے۔ ہماری اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو برائی دیکھے، من را منکرن فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے روک دیجئے، ومن لم یستطع فبلسانی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو کہیے کہ ارے بڑے میاں آپ غلط کر رہے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا مانیے کہ بھائی یہ جو مشاعرے ہو رہے ہیں، جو ڈھابے کا کلچر ہے، یہ فضول شادیاں ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعظم گڑھ سطح پر ہمارے بڑے بڑے علماء اور قائدین اور ہمارے ذمہ داران اور ہمارے رہنما اس طرح کے لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان کے ہاں جاتے ہیں، نہ ان کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مزاج ختم ہوگا اور اس کے اثرات ضرور پیدا ہوں گے، ضرور رونما ہوں گے۔ اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب ہے، وہ تو یہ بات دیتا ہے کہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ پیٹ بھر کے کھا کے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ تو جس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے، تو آپ کا ایمان اور آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، وہ اسلام وہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ تو خوب آرام اور سکون کے ساتھ رہیں اور کسی بیوہ کی بچی، کوئی یتیم بچی، کوئی بچہ پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ ایک ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، تو یہ تو بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی پیدا کریں۔ اسلام صرف روزے نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ٹوپی کرتے پاجامے کا نام نہیں ہے، اسلام تو انسانیت کے کام آنے کا نام ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام ہے۔ ناظرین، میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل۔ خبر نامے میں اور میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں انفارمیشن گائیڈنس سینٹر اعظم گڑھ کے سیکریٹری ممتاز دانشور حافظ دانش فلاحی صاحب۔ حافظ جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم گڑھ میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، اکابرین ہیں، دانشوران ہیں اور بڑی تعداد میں مدارس بھی ہیں، اور خطبہ جمعہ میں جو علماء حضرات مفتیان صاحبان ہیں وہ تقریریں بھی کرتے ہیں۔ آج کل جو سماج میں بگاڑ ہے اور نئی نسل جو بے راہ روی کا شکار ہے، بڑی تعداد میں اعظم گڑھ میں ڈھابے ہیں، ڈھابوں کا کلچر ہے، مشاعروں کا کلچر ہے، کبڈی کا کلچر ہے، ٹورنامنٹ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر کوئی صورتحال اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہے کہ مسلم کمیونٹی پر کوئی اثر پڑے، علماء کی باتوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ قوم اور یہ جو نئی نسل ہے علماء سے دور ہوتی جا رہی ہے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ شمیم بھائی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر درد مند مسلمان تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اس سوال کا جواب چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو بھی اس عام سوال کا جواب درکار ہے۔ اس سوال کا جواب مل جائے گا تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے شمیم بھائی، وہ مقصدیت کا ہے۔ کوئی بھی قوم جب وہ زوال پذیر ہوتی ہے یا زوال کی طرف جاتی ہے، تو زوال کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اس قوم کے اندر سے مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، محنت نہیں ہوگی، جدوجہد نہیں ہوگی۔ تو ایک ٹارگٹ ہونا، مقصد ہونا کسی بھی قوم کی ترقی کی
पहली सीढ़ी होती है। और बदकिस्मती से हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने इधर 70 सालों से कोई टारगेट नहीं है, कोई मकसद नहीं है। और जहाँ तक पेट पूजा की बात है, यानी पेट भरने की बात है, अपने मफाद की बात है, तो हम में और दुनिया की दीगर कौमों में कोई फर्क नहीं। भाई वो भी खा कमा रहे हैं, हम भी खा कमा रहे हैं। लेकिन जिन कौमों के बारे में आपने देखा होगा कि वो तरक्की कर रही हैं, या जो तहरीकें तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, या जो अफराद तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके सामने एक टारगेट है, एक मकसद है। हम बहैसियत कौम के, या ये कहिए कि बहैसियत उम्मत के एक मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। हमारे सामने तो बहुत बड़ा मकसद है। आप दुनिया की दीगर कौमों को देखेंगे आप, तो उनके सामने दुनिया का एक मकसद है, भाई दुनिया बना लेना है, अपना पेट भर लेना है, अपने घर वालों की किफालत कर लेना है। लेकिन मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए वो ये कि हमारी नज़र दुनिया से ज़्यादा आखिरत पर होती है। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा जो मकसद बताया वो ये कि अद-दुनिया खुलिक़त लकुम, कि अल्लाह पाक ने दुनिया आपके लिए बनाई। ये हमारा मोटो है, यानी दुनिया से हम भाग नहीं सकते। लेकिन वो अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, अल्लाह पाक ने हमें आखिरत के लिए बनाया। तो सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी निगाहों के सामने आखिरत हो, हम आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की तैयारी करें। आप सूरादियात का मुताला करें, आप कुरान मजीद की बहुत छोटी सी सूरह है, अल्लाह पाक ने घोड़ों का तज़किरा किया है, एक जानवर है वो, और कहा कि जानवर वो अपने मालिक का कितना वफादार होता है कि अपने मालिक के इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। उसके सामने एक मकसद है मालिक की वफादारी। लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने इंसान की नाफरमानी का शिकवा किया और ये कहा कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाफरमान है। वजह बताई कि वो दुनिया की मोहब्बत में बुरी तरीके से गिरफ्तार। अभी आपने कहा कि माशाल्लाह हमारे यहाँ उलमा हैं, दानिश्वरान हैं, बहुत बड़ी बड़ी दानिशगाहें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं। आप पूरब में चले जाइए तो जामिया अशरफिया है, आप दक्षिण में चले जाइए तो इस्लाह और बैतुल उलूम है, आप उत्तर में चले जाइए तो जामिअतुल फलाह है, आप आजमगढ़ के बीच में चले आइए तो जामिअतुल इरशाद है। बड़े बड़े इदारे हैं और बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले माशाल्लाह दानिश्वरान हैं, तमाम लोग हैं। ऐसे ही आप देखिए हमारे यहाँ जदीद असरी इदारे भी हैं। और आपने कहा ना कि खुतबे जुमा बेहतरीन पैराए पे होता है, लेकिन कौम के अंदर जो सुधार नहीं आ रहा है, ढाबे का कल्चर बढ़ रहा है, मुशायरों का कल्चर बढ़ रहा है। कौम की हालत ये है कि दाढ़ी टोपी के नाम पर हमारी लिंचिंग की जाती है, हमारा नाम, सिर्फ नाम हमारे लिए जुर्म बनता चला जा रहा है। और हमारे जो टॉप के लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा है, अहले सरवत हैं, पैसे वाले हैं, उन्हें अभी तक ये खबर नहीं है कि हमारी दौलत का इस्तेमाल क्या है। उसके पीछे वजह यही है, कहाँ होना चाहिए वजह, हाँ, मकसद नहीं है उनके सामने, उनको पता नहीं है कि अल्लाह पाक ने जो दौलत हमें दी है वो दौलत का इस्तेमाल क्या है, और हमें जो पैसा अल्लाह ने दिया है, जो ताकत हमें दी है, उस ताकत का इस्तेमाल क्या है। तो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ये कि हमने कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत नहीं किया। हमारे उलमा ने, हमारी दीनी तहरीकों ने, हमारे कायदीन ने कौम को अपने अपने मसलक की तरफ तो बुलाया। हमारे जुमे के खुतबों में, हमारी तकरीरों में, हमारे जलसों में मसलक की दावत तो दी जाती है, पक्का देवबंदी बनाया जाता है, पक्का बरेलवी बनाया जाता है, पक्के अहले हदीस बनाए जाते हैं, पक्के शिया और पक्के सुन्नी बनाए जाते हैं, लेकिन पक्का मुसलमान बनाने की बात नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि एक विष की गांठ है। ये हमारे यहाँ देहात में हम लोग जब जो लोग देहाती हैं, गांव में रहते हैं, वो जानते हैं कि नालियाँ होती हैं खेतों में पानी चलाने के लिए, ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल से पानी जो है नालियों में आता है, नालियों से पानी खेत में जाता है। एक किसान जब नाली में पानी चलाता है, खेतों में पानी चलाता है, तो नाली से जब पानी खेतों में जाता है तो जगह जगह भुड़ुक हो जाता है। वो जब तक किसान भुड़ुक को बंद नहीं करेगा ना, वो कभी भी ट्यूबवेल का पानी उसके खेत में नहीं जाएगा। तो हमारी कौम का आलम यही है कि
हमारे जो दानिशवरान हैं, उलमा हैं, हमारे समाज का जो भुलुक है, यानी तकरीरें हो रही हैं, इस्लाह के काम हो रहे हैं, माशाअल्लाह जमातें काम कर रही हैं, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाज का भुलुक है, जो मेन वजह है, जो असर नहीं हो रहा है, उसको जब तक हम बंद नहीं करेंगे, यानी आखिरत पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, मरने के बाद जवाबदेही का एहसास, इस दुनिया की बेसबाती, तब तक मैं समझता हूँ कि उन कौम के हालात बदल नहीं सकते। हाफिज जी, मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसा चमत्कार हो कि ढाबों का कल्चर बंद हो जाए, क्रिकेट टूर्नामेंट, मुशायरे और कबड्डी और महंगी जो शादियां हो रही हैं वो बंद हो जाए, और जो गुर्बत है, जो जहालत है, उसका खात्मा हो जाए, तो ये चमत्कार कैसे होगा? देखिए, मोजज़ों का दौर गुजर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक चमत्कार दिया था, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक चमत्कार दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, उनको भी अल्लाह पाक ने एक चमत्कार दिया था, एक मोजज़ा दिया था। वो मोजज़ा कुरान है। कुरान एक जिंदा चमत्कार है, पूरी दुनिया इसको अल्लाह का मोजज़ा मानती है। तो इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि हमारे पास अल्लाह पाक की किताब महफूज है, अपनी असली हालत में मौजूद है, तो हमें कुरान की तरफ पलटना होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा चमत्कार होगा, पता है कब होगा? जब हम गिरते 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 जलालत और गुमराही की आखिरी सतह पर पहुंच जाएंगे, जहां से फिर कोई और रास्ता नहीं मिलेगा, तब ये कौम उठेगी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हिंदुस्तानी मुसलमानों के बड़े बुरे दौर आने वाले हैं। ये मुशायरे, ये ढाबों का कल्चर, ये महंगी शादियों का मिजाज, ये बता रहा है कि अभी मुसलमान और मारे जाएंगे, दबाए जाएंगे, कुचले जाएंगे। जुल्म सितम का एक नया दौर आएगा, जब हम बिल्कुल जलालत, गुमराही और जवाल के आखिरी इंतहा को पहुंच जाएंगे, जिसके नीचे कोई इंतहा नहीं होती, तो फिर आदमी वहां से उठना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि बदलाव शुरू हो रहा है। आप आलम इस्लाम को देखिए, अफगानिस्तान के मामले को देखिए, इराक को देखिए, लीबिया देखिए, अलजायर देखिए, आप फ़लस्तीन के हालात देखिए, ईरान के हालात देखिए, बदलाव आ रहा है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान भी उरूज की तरफ आएंगे, लेकिन जब वो उरूज की तरफ आएंगे, उसका मिजाज पैदा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दुनिया पलट रही है, पूरा आलम इस्लाम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, एक नया वर्ल्ड आर्डर दुनिया में आ रहा है। और अगर हमने उसको नहीं पहचाना, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने वक्त की रफ्तार को नहीं समझा, तो मैं समझता हूँ कि कोई चमत्कार हमें इस जलालत से नहीं निकाल सकता। जो दूसरी कौमें हैं, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, जो हिंदू भाई हैं, हम देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनके हाथों में कलम है, किताब है, वो मेहनत कर रहे हैं नौकरियों के लिए, और IAS IPS बन रहे हैं, और टीचर बन रहे हैं, और वकला में हिस्सेदारी है, सहाफत में हिस्सेदारी है। वो अपने सामने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाए हुए हैं, एक लक्ष्य बनाए हुए हैं कि हमको ये बनना है, हमको ये करके दिखाना है। और मुसलमान कहाँ है, किस हालत में है, क्या कर रहा है, इसे कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। असल में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ शमीम भाई, और ये बात सच है, उनके यहाँ लाइब्रेरियाँ पाएंगे, गैर मुस्लिम इलाकों में आप चले जाइए, उनके यहाँ कोचिंग सेंटर है, तालीमी इदारे हैं, कोई स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। असल में मामला सोच का है। लेकिन अगर हमारे यहाँ तालीम है तो तरबियत नहीं है। हमारे यहाँ सोच नहीं है, असल मसला ये है, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। और आप देख लीजिए, उनके यहाँ, उनके इलाकों में, उनकी बाज़ारों में, उनके गांव में आप देख लीजिए, उनके यहाँ शाम 4 बजे के बाद दोपहरिया में आप देखेंगे, उनके यहाँ लाइब्रेरियाँ हैं, माशाल्लाह पढ़ने के अच्छे इंतज़ामात हैं। उनके जो पैसे वाले हैं, उन्होंने अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने बाज़ारों में लाइब्रेरियाँ खोली हैं। उनके बच्चों के सामने टारगेट है, उनके बच्चे दारोगा बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, SDM और DM बनना चाहते हैं, बड़े आला ओहदों पर पहुंचना चाहते हैं। और हमारे सामने हमें न खुदाई मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। हालांकि मैं आपके चैनल के जरिए
उम्मत के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी इस्लाम की तालीम ये है कि अद दुनिया अरे ईमल लि दुनिया का अन्नका तईशा अबदा, दुनिया इस तरह बनाओ कि जैसे हमेशा रहना है। व ईमल लि आखिरती का अन्नका तमूता गदा, और आखिरत की फिक्र उस तरह करो जैसे कल मर जाओगे। तो दुनिया भी बनाना है हमें और आखिरत भी बनाना है। हमें तो हर वक्त अलर्ट मूड में रहने की जरूरत है, एक्टिव मूड में रहने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से जिस कौम को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वो कौम आज सबसे ज्यादा मायूस है, नाउम्मीद है और सो रही है। वैसे धीरे धीरे बदलाव की तरफ लोग आ रहे हैं। आप जैसे लोग की काविशें भी माशाल्लाह अपना असर दिखा रही हैं। आपके बहुत सारी इंटरव्यूज मैं सुनता हूँ, जिस जज्बे और जिस हौसले के साथ आप लोगों से बातें करते हैं, तो लगता है कि कुछ बदलाव की रमक पैदा हो रही है। कहते हैं ना कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। इंशाल्लाह हम और आप जैसे लोग कोशिशें करते रहें, उसके असरात आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर नमूदार। अभी भी आपको भी इल्म होता होगा, खबरगिरी भी आप करते होंगे कि न जाने कितने ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं। वो गरीब बच्चियां जो घरों में बैठी हुई हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पैसे न होने की वजह से तालीम से महरूम है, तालीम नहीं हासिल कर पा रही हैं। लेकिन जो पैसे टूर्नामेंट में, मुशायरों में, ढाबों पर और कबड्डी में, इस तरह की जगहों पर जहाँ खर्च हो रहे हैं लाखों रुपये, अगर अच्छी जगह खर्च हो जाए, सवाब भी मिल जाएगा और समाज की तस्वीर भी आगे बढ़ेगी, कौम भी आगे बढ़ेगी। तो क्या करना चाहिए इसमें? तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मकसदियत पैदा करें, हालात की नज़ाकत को समझें। जिस तरीके से मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर हम अब भी न जागे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तारीख लिखने वाला सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को कसूर देगा जिनके हाथ में अल्लाह ने दौलत दी है। अल्लाह पाक भी उन्हीं से मुहासबा करेगा जिनको अल्लाह ने ऊपर बिठाया है। हमारे यहाँ मकसदियत का फुकदान है, टारगेट की कमी है और हालात की सही नब्ज को न समझने का सबसे बड़ा मसला है। हम और हमारे बड़े और पैसे वाले ये इस्लाम की तालीमात को समझे कि इस्लाम तो इंसानियत का मज़हब है, मानवता का मज़हब है। वो तो ये बात देता है कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर आप पेट भर के खा के सो जाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे, तो आपका ईमान काबिल कबूल नहीं है। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। तो जिस इस्लाम की तालीम ये है कि आप पेट भर के सो जाएं और आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, तो आपका ईमान और आपकी इबादतें काबिल कबूल नहीं है। वो इस्लाम वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि आप तो खूब आराम और सुकून के साथ रहें और किसी बेवा की बच्ची, कोई यतीम बच्ची, कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, पैसे की कमी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की कमी की वजह से वो एक एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं। तो ये तो बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को महसूस करें और इस्लाम की तालीमात से आगाही पैदा करें। इस्लाम सिर्फ रोज़े नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ टोपी कुर्ते पजामे का नाम नहीं है, इस्लाम तो इंसानियत के काम आने का नाम है, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने का नाम है। अगर उलमा हजरात और दानिशवरान हजरात बाइकाट कर दें, महंगी शादियों में न जाएं और अपील करें कि उन शादियों से परहेज़ करें जहाँ पर खाना फेंका जाता है, जहाँ पर गरीब बच्चों को भगा दिया जाता है अगर वो खाना खाने के लिए जाते हैं, और जहाँ पर टूर्नामेंट हो, जहाँ पर मुशायरे हो, अगर मुशायरों का बाइकाट हो, टूर्नामेंट का बाइकाट हो और अपील करें, तो क्या इस पर रोक लग सकती है? देखिए, ये ख़त्म हो सकते हैं। यहूदियों के अंदर यानी बनी इस्राइल के अंदर एक ऐब था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें अजाब में गिरफ्तार कर लिया। वो ऐब क्या था? वो लोग कौम के जो बड़े गुनहगार लोग थे उनके ऐबों को मना नहीं करते थे, खामोशी के साथ बर्दाश्त करते थे।
तो नतीजा ये हुआ कि जब अल्लाह का अजाब आया तो जो गुनाह में मुलव्विस थे वो भी लपेटे में आ गए, और जो लोग खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहे थे उन्हें भी अल्लाह ने, चाहे वो उलमा रहे हों चाहे वो दानिशवरान रहे हों, उनको भी अल्लाह ने अजाब में घेर लिया। तो हमारे आजमगढ़ में और हमारे इलाके में और हमारी कम्युनिटी के अंदर जो लोग गलत कर रहे हैं, चाहे शादियों में फजूल खर्ची हो, चाहे मुशायरे और डाबों का मामला हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट का मामला हो, इनको रोकना, जाके मना करना, ये बहैसियत कौम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उलमा की जिम्मेदारी इस लिहाज से और बढ़ जाती है कि नाइबीन रसूल हैं, ये दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह के सच्चे पैरोकार हैं, और अगर हमारे उलमा ने, दाढ़ी टोपी वालों ने, नाइबीन रसूल ने जाके अवाम इस तरह के लोगों को मना नहीं किया, उनका हाथ नहीं पकड़ा और उनको रोका नहीं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के अजाब के घेरे में सब लोग आ जाएंगे। हमारी इस्लाम की तालीम ये है कि जो बुराई देखे मनरा मुनकिरन फल युगय्यिरहु बियदी, हाथ से रोक दीजिए। वमन लम यस्तती फबिलिसानी, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो कहिए कि अरे बड़े मियाँ आप गलत कर रहे हैं, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा मानिए कि भाई ये जो मुशायरे हो रहे हैं, जो ढाबे का कल्चर है, ये फिजूल शादियाँ हैं, हम इसका बाइकाट करते हैं, हम नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आजमगढ़ सतह पर हमारे बड़े बड़े उलमा और कायदीन और हमारे जिम्मेदारान और हमारे रहनुमा इस तरह के लोगों का बाइकाट करते हैं, न उनके यहाँ जाते हैं न उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मिजाज ख़त्म होगा और इसके असरात ज़रूर पैदा होंगे, ज़रूर रोनुमा होंगे। हाफिज दानिश फलाही साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नए चैनल के लिए शमीम जराजपुरी आजमगढ़।